The Shubkal initiative is one of the most exciting things that we're doing out in the field. It's a way of bringing people to the point where they understand what climate change is about, what climate change means to them, and what they can do in order to first live with whatever climate change is going to happen, and two, to contribute to mitigating it, to reducing it. So we've actually worked with local communities, local groups of farmers, for example, groups of women who are into looking for ways to solve their energy problems. We've been working with the Karigar Mandals, the craftspersons, who have many ways of dealing with these issues, but they don't know yet necessarily what they're going to have to do, because these are new problems. So we've actually been working in Bundelkhand. Bundelkhand is a very poor area of the country, very starkly dry area of the country. It's had 4 years of drought over the last 5 or 6 years, and life is very rugged there. And it's going to get worse if climate change really is going to have an impact on rainfall, for example, and on the desertification of the land. So our aim is to make it possible for people not only to become aware, but to take charge of their lives. And these films are basically about that. More than 700 million people in rural India are dependent on climate-sensitive sectors for their livelihood, such as agriculture, livestock rearing and forestry. The changing climate and unpredictable weather patterns are having a big impact on their lives. The future holds the threat of declining crop yields, degraded lands, water scarcity and food insecurity. इंसान के जीवन में तो परेशानी ही परेशानियां हैं। अब पानी की कमी ऐसे हो रही कि वैसा हो नहीं रही। कुआं बहुत गहरे हैं, 40-50 हाथ गहरे हैं कुआं। ये बुंदेलखंड है तो यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे बरसात कम होती है, तो लोग यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, मतलब पलायन करते हैं यहाँ से। पर यूनिट लैंड जो है उत्पादकता काफ़ी कम है, रोजगार के अवसर यहाँ पर बहुत कम है कि कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है। जो हमारे यहाँ पर जो पेड़ थे वो सब काट दिए। उससे ये कीट हैं, जो बीमारियां हैं, ये आती हैं सबसे ज़्यादा। कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो मिट्टी की क्षमता है, जो हमारे खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जो किसान है उसके लिए पानी और खेती दोनों को बैलेंस करना काफ़ी खर्चीला होता है, तो इसलिए खेती मुनाफे का सौदा नहीं हो पाती है। The Shubkal Initiative of Development Alternatives works with over 280 farmers in the semi-arid region of Bundelkhand to understand these issues and jointly find solutions. Through simple demonstrations and training, the farmers' clusters are now enjoying the benefits of drought-resistant seeds, line sowing, sprinkler irrigation, green manure and agroforestry. More and more farmers sowing the seeds for change, adapting to climate uncertainties. ये पहले तो सब बंजर थी, पहाड़ियाँ थी सरे, और इसको हम लोगों को स्प्रिंकलर मिल गए तो अपना इसमें पौधा हम लोग तैयार कर रहे हैं, गेहूँ सब अपना हो रहा है। किसान लोगों को बतलाया गया कि किस तरह से हमको जुताई करना है, किस तरह से सिंचाई करना है, किस तरह से हमको पानी बचाना है। बदलाव ये देखा है, पहले सबसे पहले मतलब यहाँ पर इतने हाइब्रिड के बीज सब्जियों में या गेहूँ में उन्नत किस्म के बीज नहीं थे। हम लोग स्प्रिंकलर जो चला रहे हैं उससे सर हम लोग कम पानी लग रहा है। ऐसे हमारे पौधे को पहले 35 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती थी, हमारा 3 लीटर पानी में काम हो रहा है सर। तो अब किसानों को हम जो बात कर रहे हैं कि आप अपने पर यूनिट लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, फलों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जो यहाँ की मिट्टी है उसके अनुरूप खाद, बिजली, पानी वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको उस हिसाब से बैलेंस करें। कि हम लोगों का यहाँ ये चेक ड्रम जो है, इससे पानी हम लोग उठाते हैं सर, पानी रोके पड़े हैं हम तकरीबन 20-25-30 किसान हमारा ये पानी स्टॉक के सब लोगों को लग जाता है स्प्रिंकलर से। इसमें सर हम लोगों को मिलता था 15-16 एक एकड़ में 15-16 क्विंटल होता था, 25-26 क्विंटल एक एकड़ में हो रहा है सर हम लोगों का। किसान क्लब आज बने हुए हैं। किसान क्लब के लिए इंदौर से अच्छे उन्नत किस्म के बीज मंगाए गए और इन छोटे छोटे संगठनों के किसानों के ग्रुप को बनाकर सरकार के द्वारा जो चल रही योजनाएं हैं उससे जोड़ते हैं, जिससे किसानों में एक समझ पैदा करने के लिए और आपस में संवाद बढ़ाने में
काफ़ी फायदेमंद हो रहा है। The lives of our farmers are full of challenges, but by exposing them to good practices and training, and with a little support from policymakers, it is possible to empower them with climate-resilient solutions. The promotion of sustainable agricultural practices, along with water and energy-efficient irrigation amongst the farmers, provides the opportunity to increase production and reduce carbon emissions. चार साल से प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। मेरा आंवला जो है मंडल पर प्रथम आ रहा है। बुंदेलखंड के खासकर झांसी जिले में 20 से 25 गांव में हमारे पास आज के दिन में 400 किसानों का एक मजबूत संगठन तैयार हो गया है। तकनीकियाँ बढ़ती आ रही, जानकारियाँ मिलती आ रही हमको, उस प्रकार से हम खेती में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार के लोगों के भी नीति और नियत में एक समझ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका सारा श्रेय किसानों के संगठन को दिया जा सकता है। Shubhkal is a continued initiative of development alternatives to bring the risks of climate change to the immediate attention of the rural community of Bundelkhand. By exercising the ability to handle climate risks through adaptation and mitigation practices at the grassroots level, it is possible for farmers to secure their livelihoods. Shubhkal has enabled farmers' clusters to cope with climate uncertainties, thus promising a better tomorrow. Women are the backbone of our society, yet in villages they are traditionally sidelined. Much can be done to utilize their true potential and recognize their role. We need to involve women as equal partners in the process of change at the grassroots. क्योंकि जलवायु परिवर्तन से उनकी पूरी की पूरी दिनचर्या ही ध्वस्त हो गई है एक तरह से। सूखा आ गया या बहुत ज़्यादा पानी गिरने लग गया तो एग्रीकल्चर सबसे पहले हैम्पर होता है। धंधे के हैं ज़्यादा परेशान, खर्च ना बाल बच्चन को पढ़ा लिखा पा रहा है, कछु पैसा ही नहीं है, ऐसे मजदूरी हम और की लगे के तो पैसा पैदा करें तो बच्चे ने पढ़ाए लिखाएं। घर का चूल्हा चौका का काम था, गाय भैंस का काम था, साथ ही साथ रोजी के लिए लकड़ी कलेक्शन से लेके कहीं मजदूरी करने से लेके और एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति थी। फैसलों में बोलने का हक बिल्कुल भी नहीं है, पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है। देखो महिलाओं की दिक्कत ऐसा है, महिलाएं तो वैसे ठीक है लेकिन अशिक्षिता के कारण सारी दिक्कतें हैं। अभी तो महिला को अगर गांव में रोजगार नहीं मिल पाता, मजदूरी वगैरह, तो लोग दूसरे गांव में जाके कर रही हैं। मजदूरी है वो भी बहुत कम होती है। दूसरा, इन्हें अपनी महिला होने के नाते भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Development Alternatives tried a unique experiment through the Shubhkal initiative. A group of 40 women were facilitated to start a cowshed for non-milch cows on 20 acres of fallow land. A biogas plant was set up to provide clean energy, which is being used to run small enterprises, and the slurry from the plant sold as fertilizer. By converting cow dung into clean energy, not only is the green energy cluster capturing methane, a harmful greenhouse gas, but also securing an additional income. महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बना के उन्हें सशक्त करना और उन्हें किसी न किसी आय गतिविधि से जोड़ना, ये तो काम डीए ने सफलतापूर्वक करना किया ही है और अभी भी कर रहे हैं। लोगों के बीच में इंटरेक्शन होने लगा है, महिलाओं के बीच में, कि उनका दुख सुख क्या है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपस में ही सॉल्व करती हैं। इन 3 साल में हम लोगों ने शुरू किया महिलाओं को इस बारे में समझाना। पहले हम लोगों ने समझाया कि आपके पास क्या है, आप कैसे काम करते हो। तो सबसे पहले चूल्हा चौका की सॉल्व के लिए हम लोगों ने बायोगैस की निर्माण की। छोटी छोटी बायोगैस गांव के महिलाओं के साथ मिलके उनकी सहयोग से, गवर्नमेंट की सहयोग से हम लोगों ने बायोगैस की परियोजना चलाई। और जिन समस्याओं का वो समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो उनका जो संकुल है, शंकर सशक्ति महिला मंडल, वो उसके माध्यम से वो बड़े स्तर के अधिकारी, जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी, उनके पास में अपनी समस्याओं को रखते हैं और समाधान को तलाशते हैं। By providing them with the opportunity to get a green job and a decent income, the women have been helped to contribute financially to their families. Education and training have empowered the women to manage not just small enterprises, but also their lives. The Shubhkal initiative creates green livelihood options for women and also helps reduce greenhouse gases. उन्हें कहीं दूसरों के यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो आके अपना काम करते हैं और यहाँ खुश रहते हैं। हमने हर चीज़ महिलाएं, समूह की महिलाओं के साथ मिलकर किया। जब लोगों ने हमारे साथ विश्वास किया
जब आज महाराजपुरा में डेयरी चल रही है, मडोर में चल रही है, इतनी फायदा हुई कि जो देखो हमारे यहाँ कितनी हरियाली दिखा रही, इतनी गैया दिखा रही, और चक्की लग गई, स्पेयर लग गए, और हर चीज़, मूंगफली की मशीन लग गई, मूंगफली दाने की मशीन लग गई, और दूध डेली भी खुल गई। यहाँ से बहुत फ़ायदा हुई अब हम लोगों को सबको। तो फिर भी जो महिला समूह के अंतर्गत हैं वो इन सब चीज़ों से अब दूर होती जा रही हैं। वो लोग अगर कोई बाहर के व्यक्ति आते हैं उनसे भी खुल के बात कर लेती हैं और अपनी सारी योजनाओं के और जो भी बातें हैं आराम से शेयर कर लेती हैं उन लोगों के साथ। उनके बीच में उत्सुकता आ गई है, उनके बीच में कि क्या जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ऐसे मुद्दों पर वो आप बात करना के लायक हो गई हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये अगर बुंदेलखंड के सभी ज़िलों में, सभी गांवों में अगर हो सके तो इससे बढ़िया, बुंदेलखंड से अच्छी जगह हमारे देश की महिलाओं के लिए शायद कोई और होगी ही नहीं। The enterprise showcases an innovative method of dealing with the issue of poverty among women in a climate-sensitive environment. In a conservative society where women have very little freedom, this intervention is enabling them to earn not just a livelihood, but also dignity, self-respect and independence. Construction is the second largest polluter in the world, and yet shelter is a basic need that must be met. Rural India faces a shortfall of more than 40 million homes, besides facing a huge population growth. There's a crying need to find ways and means to construct in an eco-sensitive way. ये का जो मेन मैंडेट है क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, उसका एक कंपोनेंट है बेसिक नीड फुलफिलमेंट, जिसमें कि हैबिटेट भी आता है। तो हैबिटेट में हमारी कोशिश ये रही है कि क्लाइमेट चेंज को जहन में रखते हुए कुछ ऐसा मॉडल जो कि इको फ्रेंडली भी हो, पीपल फ्रेंडली भी हो। और जो हमारे यहाँ के कारीगर हैं बुंदेल पुराने, वो उनका धंधा खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी। इनकी लाइवलीहुड जो है बहुत कम है। लाइवलीहुड को बूस्टअप देना बहुत ज़रूरी था। पिछले अगर बुंदेलखंड की आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कारीगर में जो मेज़न है, मिस्त्री के काम करते हैं, उसके 80% हर साल के 7 से 8 महीना के लिए माइग्रेट होते हैं सिटी में। कहाँ अब जैसे मान लो इधर नहीं है तो जैसे शहर में गए और लग गया तो अपने करे या नहीं, अपने भगे है तो घर पे बैठे। आप कुछ ऐसी मतलब हमारे साथ ऐसी कृपा करो कि जिससे हमारी नई उम्मीद कोई हमें आ जाए। The Shubhkal initiative created a guild called the Tara Karigar Mandal with 80 artisans. Masons were trained in building homes that were environment friendly and yet cost effective. Polluting material and resource wasteful practices for construction were replaced with newer methods and technologies. The artisans were helped to leverage schemes leading to the creation of a market for energy and resource efficient buildings. तारा कारीगर मंडल को बनाने का और उसको आगे चलाने का जो मोटिव है वो यही है कि जो रूरल मासेस में जो लोकली अवेलेबल स्किल्स जो होती हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स जो भी होती हैं, उनको इन्हांस हम नहीं कर पाते। तो इनको एक डिफरेंट ट्रेनिंग पैकेज, एक्सपोजर विजिट्स के ज़रिए हमने उनकी स्किल्स को इन्हांस किया, उनको ट्रेन किया और बहुत सारे मास्टर्स ट्रेनर बना दिए। एक तो इन तकनीकों से हम 10 से 15% तक घर का कॉस्ट कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है। पत्थर भी कम लगा, गुम्मा भी कम लगा, बजरी भी कम लगी और कारीगर भी उसमें बनाने में कम लगे। तो गुम्मे की भी फायदा है और सीमेंट की भी फायदा है। 1 महीना में मकान खड़ा हो जाएगा। जो गर्मी के सीजन में जब हम लोग उनके अंदर बैठते हैं तो जितनी गर्मी अन्य मकानों में गर्मी महसूस होती है, क्योंकि इसमें उतनी गर्मी महसूस नहीं होती। सबसे हमारा बड़ा अचीवमेंट था कि लोग जो है अब इस टेक्नोलॉजी का डिमांड करने लगे हैं। यूँ कहिए कि एक सस्टेनेबल क्रेडिट बेस्ड मॉडल है हाउसिंग का, क्योंकि हाउसिंग इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर। 30,000 रुपया लोन भी मिल रहा है हमको, 30,000 रुपया हमको निजी लगाना है, ये इसमें फ़ायदा है। जिन कारीगरों के साथ हम काम कर रहे थे उन कारीगरों में एक भी माइग्रेशन नहीं नोटिस किया गया लास्ट 2 years। Since the creation of the Mandal, the market demand for the artisan group has increased and many new green jobs have been promoted. The initiative has been so successful that the artisans are not only flooded with work but are now recognized as master trainers and have provided training in eco-habitat practices to nearly 200 artisans across the state of Madhya Pradesh. टेक्निक सीखने को मिला, नया तरीके का काम सीखने को मिला,
और उसके बाद कुछ रेट में भी परिवर्तन हो गया। करीब 200 से 250 इको फ्रेंडली हाउसेस का निर्माण कर चुके हैं। पुराने से नया हो गया। आप लोगों की इतनी कृपा हमारे यहाँ तारामंडल की भाई कि हमारे यहाँ पूरा पुराने से आदिवासी मोहल्ला हरबार मोहल्ला को नया बना। इम्पैक्ट जो देखने में आया है कि इनका माइग्रेशन रुका है, इनको अपने क्षेत्र में ही काम मिलने लगा है और अब ये इतने प्रशिक्षित हो चुके हैं कि दूसरे क्षेत्रों में जाके जो वहाँ के अप्रशिक्षित कारीगर हैं उनको भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। Shubhkal Initiative's work with the Artisans Group has demonstrated that adopting and promoting eco-habitat technology can reduce the impact of construction on the environment. The artisans of Tara Karigar Mandal are showing us how to build a more sustainable future. I think it would be too early to be definitive about an evaluation of Shubhkal, but I think we're well on the way to making a big difference. We can see this in the lives of the farmers, the women particularly, and even many of the artisans who have been looking at ways in which to be more resilient in the face of rapid change. I think the lessons that we're learning are more in the way of how do very poor people manage their resources and their environment to their own advantage. And these lessons are very important for us because that's how we can develop more integrated methods for other places as well. So our hope is that what we've learned from doing Shubhkal is that we will be able to apply it in many other parts of the world.